हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। एंड आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास 11th लीगल स्टडीज़ का यूनिट 1 चैप्टर 2 विच इज़ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. So before we begin, if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel for regular updates and more videos. We will begin with the chapter 2 organs of the government. Now when you hear the term government, it does not mean कि सिर्फ एक institution है government. No, government is a set of institutions, government is a set of various organs, organizations जो आपस में मिलकर constitute करते हैं government. So India में broadly we have three organs of the government. First is legislature जिसमें include होते हैं parliament, that is your two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha, and all the state legislative assemblies. So इनका main काम होता है law बनाना. सेकेंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव. इसमें इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज. इनका काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना. एंड थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी. जुडिशरी इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड वेरियस लोअर कोर्ट्स. इनका काम होता है कोई भी डिस्प्यूट आए तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना. So depending upon the various features and characteristics हम गवर्नमेंट को भी डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम थ्री ऑथर्स के व्यू पढ़ेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट को कैसे डिवाइड किया है, एंड देन वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर प्रेवलेंट टुडे इन द मॉडर्न टाइम. So the first philosopher is Aristotle. He said that government can be divided mainly on two bases. First, number of the persons who have the ruling power, and secondly, the purpose of that government. So, according to Aristotle, अगर गवर्नमेंट में सिर्फ एक पर्सन है जिसके पास सारी अथॉरिटी एंड रूलिंग पावर है, then that government will be known as monarchy. But अगर that monarchy do any kind of corruption, then the government will be known as tyranny. Means the perverted form of government, any government which do corruption. So अगर गवर्नमेंट में देयर आर वेरी फ्यू पीपल, हैंडफुल पीपल, देन हम उनको बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी. बट अगर दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डू एनी करप्शन, देन दैट अरिस्टोक्रेसी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओलिगार्की. एंड देन लास्टली अगर बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट में जिनके पास रूलिंग पावर है, देन इट इज़ नोन एज पॉलिटी. बट सेम अगर वो पॉलिटी गवर्नमेंट करप्शन करे तो दैट गेट्स चेंज इनटू डेमोक्रेसी. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि मॉडर्न टाइम में हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, बट दीज आर द ओपिनियंस ऑफ अरिस्टोटल. सो ये अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट विच डूज करप्शन. सो इस चार्ट से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए दैट नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्स फॉर एवर. No form of government is absolute. हर government आती है, then after some period of time it gives space to other kind of government. So no government remains forever or static. Second person which we will study is Burgess. Burgess ने 4 principles of distinction दिए forms of government को divide करने के लिए. पहला principle था on the basis of identity or non-identity of the state within the government. So अगर government is not recognized, it means primary form. If it is recognized, it means the representative form. Second principle था tenure of executive. मतलब अगर तो regular elections हो रहे हैं and different people come to power, then it is elective form of government. But अगर power just goes from one generation to another, मतलब from father to son then to grandson, then that type of government is known as hereditary. Third principle था relation between the executive and legislature. So डिपेंडिंग अपॉन दीज टू ऑर्गन्स किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है. सो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म को हम बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे. फोर्थ प्रिंसिपल था कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अगर तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड्स में है, then it is known as unitary form of government. But if the power is divided equally between the center and the state, then उस form of government को हम बोलते हैं federal government.
थर्ड फिलोसफर दैट वी आर गोना स्टडी इज स्टीफन लीकॉक. इन्होंने भी 4 प्रिंसिपल्स दिए. फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सॉवरेन पावर. मतलब अगर इफ ऑल द पावर इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन इट इज नोन एज डिक्टेटरशिप, बट इफ द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ मेनी पर्सन्स एंड रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं देन इट इज नोन एज डेमोक्रेसी. Second principle which he gave was acquiring the power by the head of state. If there is the rule of one king or the queen, it is known as constitutional monarchy. But if in the form of government there are various persons which are elected, which includes prime minister, president and various ministers, उस form को हम बोल देते हैं republic. Third principle and the fourth principle, these are very similar to what Burgess gave. That is, he divided same on the basis of parliamentary, presidential and unitary and federal. So these are very similar to the principles which Burgess gave. Now we will study the various forms of government जो आज के time पे classified हैं. So first form is monarchy. Monarchy is the oldest form of government because ये सबसे पहले emerge हुई थी world में. एंड इट इज़ बेसिकली अ रिजाइम, पॉलिटिकल रिजाइम, जहाँ पर सारी पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हैंड में होती है. सारी सुप्रीम पावर, सारी फाइनल अथॉरिटीज़, कोई भी ऑर्डर पास करने का पावर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के हैंड में होता है, हु वियर्स द क्राउन, बेसिकली अ किंग और द क्वीन. एंड it is the will of that person, it is the will of that king या फिर queen that prevails on all the matters of government. So monarchy means the rule of one person. Monarchy को हम further 2 types में divide कर सकते हैं. Absolute monarchy means ऐसा government जहाँ पे सिर्फ एक king या queen की ही बात सुनी जाएगी and nobody else. And second is parliamentary form of monarchy. Parliamentary form में there is a king and queen, but king and queen के अलावा भी there is somehow organ of the government like either the legislature या फिर executive. So now monarchy को भी further 2 types में divide किया गया है. Absolute monarchy, ऐसी government जहाँ पे सिर्फ एक ही person की सुनी जाएगी, that is either king or the queen. And second is parliamentary form of monarchy. यहाँ पे किंग के साथ साथ या क्वीन के साथ साथ देयर इज वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज नोन एज लेजिस्लेचर. सो देयर इज अ किंग और क्वीन along with there is a person, along with there is an organ which is known as legislature. सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एरिस्टोक्रेसी. ये एरिस्टोक्रेसी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. एरिस्टो का मतलब होता है बेस्ट एंड क्रेटिन का मतलब होता है टू रूल. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल के हैंड्स में पावर होती है एंड दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिटरमाइन करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ होंगी एंड कौन कौन पब्लिक ऑफिशियल्स सिलेक्ट किए जाएंगे. बेसिकली अरिस्टोक्रेसी में या तो प्रीस्ट्स के हैंड में पावर होगी या सोल्जर्स के हैंड में पावर होगी, मींस मिलिट्री का रूल होगा, या लैंड ओनर्स के हैंड्स में पावर होगी. बेसिकली द पावर इज विद इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल. थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप. नाउ डिक्टेटरशिप का मतलब भी होता है रूल बाय सिंगल पर्सन, एक ही इंडिविजुअल का रूल चलेगा एंड उस पर्सन को बोलते हैं डिक्टेटर. सो डिक्टेटर कंट्रोल करता है सारी पॉलिटिकल पावर्स, डिक्टेटर ही लॉज इम्प्लीमेंट करता है और डिक्टेटर की ही सुनी जाती है, उसका ही विल चलता है. सो डिक्टेटर हैज़ द एब्सोल्यूट पावर, प्लस डिक्टेटर जो भी काम करता है उसके लिए ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द सिटीजन्स. It is the wish of the dictator that will prevail over the citizens. Now you will ask that what is the difference between dictatorship and monarchy? Because monarchy में भी सिर्फ एक ही person का rule होता है, same as dictatorship. But the difference is monarchy में there is a shift of power in the same family line. For example, from फादर टू सन और द ग्रैंड सन. और अगर एक फैमिली में नहीं भी हो रही है तो नेक्स्ट पर्सन इज यूजुअली इलेक्टेड, राइट. बट इन डिक्टेटरशिप हमेशा पावर ऑक्यूपाई की जाती है या तो फोर्स से या इन्वेजन से या इंटरवेंशन से या मिलिट्री के रूल से.
सो डिक्टेटरशिप में ये 4 वेज का यूज करके पावर गेन होती है, वेयर एज मोनार्की में या तो सेम ही फैमिली में पावर दी जाती है या फिर इलेक्शन से नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव या नेक्स्ट किंग को चूज किया जाता है. And then we have the last form of government, which is known as democracy. Democracy is again a Greek word. Demos mean people and kratia means rule. It simply means rule of the people. So democracy is that form of government जहाँ पर जो ruling power है वो किसी भी एक person या एक class के hands में नहीं होगी. सारी ruling power are in the hands of people. People are the most powerful in डेमोक्रेसी. पीपल ही अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं एंड पीपल्स के पास ही ऑप्शन होता है अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं एंड पीपल के पास ही ऑप्शन होता है इन द नेक्स्ट इलेक्शंस डिफरेंट रूलर्स को इलेक्ट करने का. सो एज अब्राहम लिंकन सेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people and for the people. So people are most important in the democracy because पीपल ही गवर्नमेंट को बनाते हैं. गवर्नमेंट बनी भी पीपल के लिए ही होती है और लोगों की ही गवर्नमेंट होती है. नाउ डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज ऑल्सो नोन एज प्योर डेमोक्रेसी. सेकेंड इज इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे पॉलिटिकल पावर इज डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एंड इट इज़ द सिटीजन्स हु आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द पब्लिक ऑफिसर्स. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर सारी पॉलिटिकल पावर लाइज in the hands of citizens. So citizens are the one जो legislations को enact करते हैं and रेगुलेशंस को एडमिनिस्टर करते हैं एंड सिटीजन्स आर द वन जो अपने पब्लिक ऑफिसर्स को इलेक्ट करते हैं. नाउ दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इन द कंट्रीज जहाँ पे लेस पॉपुलेशन हो. फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है इस कंट्री की, दे कम टुगेदर इन अ कॉमन प्लेस एंड देन दे डिसाइड कि कौन सा लॉ बनना चाहिए, कौन से रेगुलेशंस होने चाहिए एंड विच पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ दैट कंट्री. So this means direct democracy. 2 terms which are associated with direct democracy are referendum and plebiscite. Referendum का मतलब होता है कि कोई भी बिल जो लेजिस्लेचर पास करती है वो लेजिस्लेचर में से पास होने के बाद डायरेक्टली जाता है वोटर्स के पास एंड वोटर्स को उस बिल को फाइनल रैटिफिकेशन मतलब फाइनल अप्रूवल देना होता है. सो अल्टीमेटली सिटीजन्स हैव ऑल द पावर. सेकेंड टर्म है प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट इशू है जो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है तो उस इशू पर डिसीजन देंगे वोटर्स ऑफ दैट कंट्री. सेकेंड फॉर्म है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन सिलेक्ट करते हैं. ये रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द लेजिस्लेचर एंड इन द एग्जीक्यूटिव फॉर अ फिक्स टर्म. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से जो पीपल सिलेक्ट होते हैं दे गो एज MPs and MLAs in various houses like लोकसभा, राज्यसभा एंड देन लोकसभा एंड राज्यसभा में जो भी डिसीजन लिया जाता है all those people जिनको इलेक्ट किया गया है दे आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू द सिटीजन जिन्होंने उन्हें वोट किया है. एंड अगर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो MLAs हैं, MPs हैं, इफ़ दे आर नॉट डूइंग द राइट वर्क देन सिटीजन्स हैव द पावर कि अगले इलेक्शंस में सिटीजन्स इलेक्ट सम अदर पर्सन एज द रिप्रेजेंटेटिव. नाउ फर्दर आप एक डेमोक्रेसी को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम. First we will discuss the parliamentary system which is also followed in India and UK. So parliamentary system में जो 2 organs of the government हैं, legislature and the executive, ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी related होती हैं by way of membership and accountability. For example, इंडिया में there are 2 organs, legislature and executive. अब ये आपस में इस तरह से related हैं कि legislature में जब भी लोग elect होते हैं all the people of Lok Sabha and Rajya Sabha after being elected they elect the members of executive means they elect
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो लेजिस्लेचर के लोग एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, एंड इन रिटर्न जब प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है देन ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सो इन दिस वे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर रिलेटेड टू ईच अदर। फर्दरमोर जो एग्जीक्यूटिव है वो जो भी लॉज इम्प्लीमेंट करता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, लॉ बनाने के बाद वो एग्जीक्यूटिव को पास करती है, देन एग्जीक्यूटिव को उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, एंड वाइल इम्प्लीमेंटिंग दैट लॉ एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द legislature. So you can say it is based on the principle of collective responsibility that legislature and executive आपस में मिलकर लोगों की तरफ answerable हैं। सो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेकेंड है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट होती है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर ब्रांच से। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए एंड अर्जेंटीना, यूएसए में द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड ही हैज़ द इंडिपेंडेंट टेन्योर एंड एक्शन, मतलब उसका टेन्योर और एक्शन लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं करता। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ यूजुअली 5 years, एंड अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है देन देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, उस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट रिमूव हो सकता है, बट नॉट इन एनी अदर केस। सो प्रेसिडेंट अपने अपॉइंट होने के बाद अपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है, मतलब सेक्रेटरीज आर बेसिकली द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, और जो ये हेड्स होते हैं ये लेजिस्लेचर को बिलोंग नहीं करते। सो मतलब एग्जीक्यूटिव के पीपल एंड लेजिस्लेचर के पीपल दे आर नॉट इलेक्टेड। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने मेंबर्स को खुद से अपॉइंट कर रहा है, एंड प्रेसिडेंट इज़ द वन जो फॉर्मुलेट करता है सारी नेशनल पॉलिसीज़ को, मिलिट्री ट्रूप्स को मोबिलाइज करता है, और अगर कोई भी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो तो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है इफ़ देयर सिचुएशन इमर्जेस जहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़े। So all the bills passed by the legislature are subject to the ratification और veto of president। मतलब जब legislature अपने bills पास कर देते हैं वो तभी अप्लाई होंगे on the citizen जब president उनको approval दे दे। The president's policies and decisions are subject to the ratification by Senate। So parliament का नाम USA में Senate and Congress है। नाउ दिस जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेटली काम करते हैं, ये इंटर रिलेटेड नहीं होते और ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इन शॉर्ट अगर आपको समझना हो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड नहीं होते, रादर ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। सो द लास्ट टाइप जिसमें आप टाइप ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड कर सकते हो इज़ द यूनिटरी फॉर्म एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी विल फर्स्ट डिस्कस यूनिटरी फॉर्म। यूनिटरी फॉर्म मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर सारा रूल होता है एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जो लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेशन के लिए बनाई जाती हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोकल गवर्नमेंट्स को पावर डेलीगेट करता है। बेसिकली कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा एंड सबॉर्डिनेट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सबॉर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी बट उनका खुद से कोई एरिया ऑफ वर्क डिफरेंट नहीं होगा। They have to agree to what central government will say. Next we have federal government which is also followed in India. Federal government में power is divided between the central government and the state government. So it is mentioned in the constitution कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी एंड कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है जहाँ पे 3 लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स मेंशन है वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सिमिलरली देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन होते हैं वहाँ पर बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सो देयर इज प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर। यूनियन को डिफरेंट स्फीयर ऑफ वर्क दिया है एंड स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट स्फीयर ऑफ वर्क दिया है, एंड इन इंडिया वी फॉलो दिस फेडरल गवर्नमेंट। एंड देयर इज अ सेइंग दैट इंडिया सिस्टम इज फेडरल इन कैरेक्टर, हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है बट स्टिल वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट, बट स्टिल द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर सेम एज जो यूनिटरी फॉर्म में होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, डू वॉच दैट वीडियो, एंड दोनों वीडियोज़ के बाद आपका यूनिट 2 विल बी फिनिश्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इफ़ यू आर गेटिंग टू नो things of legal studies from the video and it is helping you, kindly drop a like on the video, subscribe to my channel for more videos, share this video with your friends and comment करके बताइए आपको कोई डाउट या क्वेरी हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।